first chapter, right? So is there any confusion? Then let me ask, otherwise we can start our second chapter. No confusion, sir. Good. So जो last topic था at that time I had told कि भाई ये जो भी topics है asymptotic notation है that we will see in detail in chapter number 2, right? So that's why I had just introduced that topic in your first chapter, and now we will see all the asymptotic notation in detail, right? So let's start. So your second chapter is basically focused on algorithm analysis, right? So as I had told in first lecture, your total syllabus is basically divided Sir? into. हाँ बोलो. Will you please start the recording? Okay, just a minute. Okay. So as I have told in your first lecture, your syllabus is basically divided into two parts: design of algorithm and analysis of algorithm, right? So your second chapter is mainly focused on analysis part, right? So first of all, quickly revise. Just a minute. Okay, so 3 students are at campus. Surprising. Okay, let's continue. First of all, we will see the definition which is already covered in your first chapter. So an algorithm is a finite set of precise instruction for performing a computational or for solving a problem, right? So basically, we are design any algorithm to perform some task, or maybe to perform some computational task, or maybe it can develop to solve particular problem, right? So in terms of analysis, we need to clarify what is the goal of analysis of algorithm, why we need to do analysis. So to compare algorithm mainly in terms of running time, but also in terms of other factor. ठीक है, सिर्फ रनिंग टाइम इज नॉट नेसेसरी कि भाई वो कितने सेकेंड्स के अंदर एग्जीक्यूट हो गया. अगर सिर्फ यही चीज देखनी होती तो वी कैन स्टार्ट टाइमर बिफोर executing our algorithm, and after execution we can stop our timer, right? And in few application the execution time is already shown like code block. ठीक है, so we can compare the algorithm. अगर हमें सिर्फ running time ही देखना होगा, no, सिर्फ running time is not important. We need to check other factors also, like memory requirement, programmers efforts, etc., right? Next thing, but no doubt most important thing is running time. So what do you mean by running time analysis? Determine how running time increase as the size of the problem increase. जैसे मैंने अभी बताया कि कोड ब्लॉक में तो आपको एग्जीक्यूशन टाइम भी नीचे डिस्प्ले हो ही जाता है कि दिस अमाउंट ऑफ सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बट we need to check what will be the effect of your input on your running time. It might possible ki you are increasing the number of inputs, or maybe you are changing the input, and your execution time might be increased, might be decreased, right?
So it might possible कि भी आपका जो running time it will be increased or decreased based on the size of a problem, right? So कई बार क्या होता है कि problem की size increase होने से जो running time है definitely it will be increased, वो तो understandable है, but the ratio of increment need to be considered, right? So input size basically depends on size of an array, polynomial degree, number of elements in a matrix, जहाँ पे matrix use होता है, number of bits in the binary representation of input. For example, अगर आप input जो है वो 3 integer variable consider करते हो, तो in C++ it requires 2 byte, but in Java it requires 4 byte. दोनों ही जगह पे आपकी जो इनपुट है वो इंटीजर टाइप का है, बट स्टिल मेमोरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, राइट? सो वी नीड टू कंसीडर द नंबर ऑफ बिट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट. वर्टाइसिस एंड एजेस इन अ ग्राफ, जो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ट्री ग्राफ के कंसेप्ट यूज होते हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू कंसीडर नंबर ऑफ वर्टाइसिस एंड एजेस that are available in graph, right? So these all things can be considered as input size, जहाँ पे definitely see if you are not using array तो point number will be cancelled, if you are not using matrix then point number 3 will be cancelled, if you are not using tree or graph then last point will be cancelled, ठीक है? But wherever it is applicable we need to consider in input size, right? Sir, हाँ बोलो. how we can you explain or can you elaborate this polynomial degree point? See, polynomial degree means let's take example of factorial. ठीक है, factorial में एक ही input होता है, एक ही output होता है, right? So we are not changing number of input. But अगर आप 5 factorial calculate करोगे और 25 factorial calculate करोगे, तो definitely आपका जो input है वो 5 times मतलब उसकी increase हुआ है number, ठीक है? तो it might possible कि आपको output calculation करने के लिए 5 times time लग सकता है. It might possible more than 5 times time लग सकता है. It might possible less than 5 times time लग सकता है. तीनों possibilities है, right? So you need to consider polynomial degree. See, वो linear way में आगे बढ़ रहा है, मतलब n के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, n square के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, n cube के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, n log n के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, right? So these all are considered as polynomial degree, right? कि उसका जो एक्सपोनेंशियल वे है, अगर कहीं जब बार एक्सपोनेंशियल वे से वो आगे बढ़ रहा है, सो अगर एक्सपोनेंशियल है तो कौन सा एक्सपोनेंशियल? e रेस टू 2 रेस टू 10 रेस टू, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स है, राइट? सो हमें इस तरीके से वी नीड टू कंसिडर कि व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ इनपुट साइज, कि भाई इनपुट साइज आपके आउटपुट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है. सिमिलरली आप बबल शॉट में देख लो तो 5 अगर आप इनपुट देते हो और 15 इनपुट देते हो, तो अगर वो उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट वे से बढ़ रहा है, लाइक इफ यू आर मल्टीप्लाइंग योर नंबर ऑफ इनपुट, 2 की बजाय 5, 5 की बजाय 10, 10 की बजाय 15 अगर आप लेते हो, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इट विल रिमेन सेम आउटपुट की कैटेगरी में, तो डेफिनेटली वो लीनियर वे से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से वी नीड टू कंसिडर पोलिनोमियल डिग्री, कि आपका जो इनपुट है, आपका पॉसिबल जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या कैसे होगी? ऑर्डर ऑफ n, n स्क्वायर, n log n, n क्यूब, इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, राइट? तो यहाँ पे जो पावर है डेफिनेटली n, n स्क्वायर, n क्यूब, अगर ये 3 चीज़ों को कंसिडर करें तो n कैटेगरी में क्या होगा कि वो लीनियर वे से बढ़ेगी. ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, वो एक लीनियर वे से बढ़ रही है कि एज एंड व्हेन योर इनपुट इज इंक्रीजिंग, सिमिलर काइंड ऑफ इंक्रीमेंट विल बी इन योर आउटपुट. ये जो है दैट इज योर इनपुट और ये जो है दैट इज योर आउटपुट, ठीक है? आपका इनपुट जितना बढ़ रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर आपका आउटपुट बढ़ रहा है, राइट? सो ये जो है इट कैन बी कंसिडर एज ऑर्डर ऑफ n. तो यहाँ पे आपकी पोलिनोमियल डिग्री हुई 1, राइट? तो वी कैन कंसिडर के वो लीनियर वे से इंक्रीज हो रहा है, राइट? Yes, sir, got it. Now, whenever we are doing some kind of analysis, we need to consider 3 things.
worst case, best case, and average case. See, in last lecture, I have introduced this term, lower bound and upper bound, right? So lower bound represents minimum amount of time required to execute some particular algorithm, and upper bound means मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सम एल्गोरिथम. मैंने उसके लिए आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके घर से आप चारों साइड यूनिवर्सिटी आते हो तो कितना टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, राइट? सो मिनिमम एंड मैक्सिमम. और थर्ड वन इज योर रनिंग टाइम, मतलब ऑन एन एवरेज आपको इतना टाइम लगता है, राइट? डेफिनेटली योर रनिंग टाइम विल बी मोर देन लोअर बाउंड एंड लेस देन अपर बाउंड. ठीक है, कुछ केस में वो इक्वल टू भी हो सकता है. ठीक है, जहां पे कांस्टेंट वेसेज, ना तो कोई मिनिमम अमाउंट है, ना तो कोई मैक्सिमम अमाउंट है, ना कोई एवरेज अमाउंट है, सेम टाइम लगता है. ऐसा भी कुछ एल्गोरिथम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, राइट? सो बेसिकली वी कैन आइडेंटिफाई थ्री थिंग्स: लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड रनिंग टाइम, राइट? एंड वी नीड टू कंसिडर थ्री टाइप ऑफ एनालिसिस: वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस. से इट इज नॉट लाइक कंपल्जन कि भाई हर एक प्रॉब्लम में आपको ये तीनों केस मिले. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी है वेयर वी कुड नॉट फाइंड वर्स्ट केस. कुछ केस ऐसे भी है जहाँ पे हमें बेस्ट केस जैसा कुछ नहीं मिल रहा है. कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे एवरेज केस नहीं मिल रहा है. कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही केस मिल रहा है. ठीक है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई इसका मतलब सी 10-20% फ्लक्चुएशन दैट इज ओके, बट एग्जैक्ट लोअर बाउंड, एग्जैक्ट अपर बाउंड इज लाइक वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे भी कुछ केसेस आएंगे. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं, राइट? तो बट जनरली वी नीड टू कंसिडर दिस थ्री थिंग. नाउ इन वर्स्ट केस वी शुड प्रोवाइड एन अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम, क्योंकि सी मैक्सिमम टाइम जो लगता है दैट इज योर वर्स्ट केस. ठीक है, जैसे मैंने वो जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, अगर वही एग्जांपल को हम कंसिडर करें तो उसमें मैंने बोला था कि मान लो कि 90 मिनट इज योर हाईएस्ट टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू यूनिवर्सिटी. अब ये जो है दैट इज योर वर्स्ट केस, राइट? क्योंकि वहां पे उसका जो रनिंग टाइम है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपको कभी टाइम नहीं लग सकता. 60 मिनट इज योर बेस्ट टाइम. ठीक है, तो जो भी आपका लोअर बाउंड आपको मिलेगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर बेस्ट केस. ठीक है, एंड एवरेज केस थोड़ा मतलब अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकता है. इट प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्शन अबाउट द रनिंग टाइम, कि जो मैंने आपको बोला था कि ऑन एन एवरेज 75 to 80 मिनट लगते हैं. ठीक है, 60 मिनट का जो केस है वो एक आइडियल केस है कि कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, आपका जो रोड है वो एकदम स्मूथ है. ये जो भी पैरामीटर्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक आइडियल पैरामीटर्स है, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल कि हर टाइम हमें ऐसा ही पैरामीटर मिलेगा, राइट? हाँ, बट ऐसा मिल भी सकता है, राइट? तो वी आर एज्यूमिंग समथिंग कि भाई हमें कुछ ऐसा मिलेगा तो व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, राइट? तो दैट इज योर बेस्ट केस. ठीक है, बट जनरली आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहते हैं. ठीक है, सो दैट वन कैन बी कंसिडर एज एवरेज केस, राइट? तो वहां पे कुछ प्रिडिक्शन ही लगेगा, राइट? कि हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एजम्पशंस करना होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेडिक्शन करना होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट एवरेज केस. तो जनरली ये एवरेज केस जो है वो रैंडम इनपुट से ही कैलकुलेट हो सकता है. ठीक है, वी कैन कंसिडर के भाई चलो एक काम करते हैं, पूरे जून मंथ का एनालिसिस करते हैं. 1 जून को कितना टाइम लगा, 2 जून को कितना टाइम लगा, 3rd, 4th, 5th अप टू 30 जून को कितना टाइम लगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक अ एवरेज कि भाई हर एक का टोटल मानो एक दिन लगा 75, 80, 82, 72, जितना भी है उसका एक एवरेज अमाउंट. मान लो कि एवरेज अमाउंट मुझे मिला 77. सो वी कैन से दैट कि 77 मिनट इज योर एवरेज केस. ठीक है, इट डजंट मीन कि भाई मतलब फिर हमें उसको ऐसा कंपेयर नहीं करना कि 30 डेज में से कितने दिन हम 77 मिनट के अंदर आ गए. सी वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज, और हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई जून मंथ में ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगा, राइट? अब इज इट पॉसिबल कि सेम एवरेज हमें जुलाई मंथ में मिले? नो, इट माइट इंक्रीज, इट माइट बी डिक्रीज. ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, राइट? So based on certain criteria, that answer will be accurate, but we cannot say that that answer is accurate in all the condition. Average case के बारे में, right?
बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस जनरली जो उसकी सबसे वीक कंडीशन एंड सबसे बेस्ट कंडीशन होती है उसके बेस पर कैलकुलेट होता है. सो ऑन एन एवरेज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस जो हमें कैलकुलेशन देगा वो थोड़ा एक्यूरेट होंगे, क्योंकि वहां पे वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग. ठीक है, वहां पे कुछ गारंटी है कि भाई हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हमें रोड स्मूथ मिलेगा, तो इट इज गारंटेड कि वी विल रीच इन 60 मिनट, राइट. बट इन एवरेज केस देयर इज नो काइंड ऑफ गारंटी. वहां पे हमें प्रिडिक्शन करना होगा, राइट. सो दैट्स व्हाई एवरेज केस जो है वो जनरली हम लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू डिराइव नहीं करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल डिराइव बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. और एवरेज केस को क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ इन बिटवीन ये जो दो वैल्यू है उसके बीच का कोई भी रनिंग टाइम हमें मिल सकता है. ठीक है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एवरेज केस, राइट. कुछ ही एल्गोरिथम ऐसे कि जहां पे मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू वी कैन डिराइव एवरेज केस. हाँ, तो उस एट दैट टाइम वी कैन कंसिडर एवरेज केस. ठीक है, बट ऐसे केसेस बहुत कम है, राइट. सो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, एल्गोरिथम बाय एल्गोरिथम यू नीड टू रिमेंबर. या फिर थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे वी शुड नॉट गो फॉर द एवरेज केस, वी शुड गो फॉर द वर्स्ट केस और बेस्ट केस. ठीक है. नाउ हाउ डू Hello, वी. sir. हाँ बोलो. Uh, yeah, if we need to analyze for best case or average case, but is it true that we need to or it is mandatory for us to identify the worst case scenario of every algorithm? नहीं, अगेन सी एल्गोरिथम का एनालिसिस इज अ कंपल्सरी पार्ट, राइट. बट हर एल्गोरिथम में हमें बेस्ट केस मिलेगा, दैट इज नॉट केस. हर एल्गोरिथम में हमें वर्स्ट केस मिलेगा, दैट इज नॉट केस. सी जैसे शॉर्टिंग की बात करें तो एक्चुअली सबसे बेस्ट केस कौन सा है पता है? एक ही नंबर दिया हो. एक्चुअली देखने जाओ तो वो सबसे बेस्ट केस है. ठीक है, Yes, बट sir. जब आप एक्चुअली एनालिसिस करने बैठते हो तो आप ये वाला केस तो कभी कंसिडर ही नहीं करते हो. समझ में आया कि आप बेस्ट केस किसको बोलते हो? नियरली शॉर्टेड डेटा. ठीक है, बट उससे भी कम टाइम है कि भाई एक ही नंबर आपको दिया हो तो उसमें क्या आप शॉर्ट क्या कंपेयर करोगे और क्या शॉर्ट करोगे आप? इट इज ऑलरेडी शॉर्टेड इन ऑल द सिचुएशन. ठीक है, उसका बेस्ट केस भी वही है, एवरेज केस भी वही है और वर्स्ट केस भी वही है अगर आप एक ही नंबर पास करोगे तो, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेस्ड ऑन सर्टेन, इसीलिए जब आप एनालिसिस करो ना तो आपको ये सब चीजें भी मतलब मेंशन करनी है कि भाई मैंने ये चीजें कंसिडर की है. बेस्ड ऑन दिस थिंग मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये मेरा बेस्ट केस और ये मेरा वर्स्ट केस है. ठीक है, बट जहां पे जरूरत हो, जहां पे मेंशन करके दिया हो या इफ यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ही आपको वहां पे जाना है. ठीक है, दैट्स व्हाई हम मेजोरिटीली जो बिग ओ नोटेशन है उसी को यूज करते हैं. ठीक है, बहुत कम केसेस ऐसे है कि जहां पे थीटा या ओमेगा नोटेशन यूज होता है, जो हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन कल मतलब लास्ट लेक्चर में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, वहां पे थीटा एंड ओमेगा नोटेशन बहुत कम जगह पे यूज होते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में बिग ओ नोटेशन ही यूज होता है. ठीक है, और वो हमें लाइक एनालिसिस का जो आउटपुट है उसका ओवरऑल सिनेरियो प्रोवाइड कर देता है, राइट. सो वी कैन कंसिडर इट एज अ बेंचमार्क कि भाई उसके बेस पे हम दो एल्गोरिथम को आराम से कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हर केस में हमें तीन पैरामीटर नहीं मिल सकते. जैसे शॉर्टिंग के अलग अलग एल्गोरिथम मुझे सर्च कंपेयर करने हैं तो मुझे हर एल्गोरिथम में ये तीनों केस नहीं मिल सकते, राइट. सो हाउ आई कैन कंपेयर दैट एल्गोरिथम, राइट. सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन बनाया गया है कि वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री कैटेगरी, क्योंकि कुछ जगह पे एक ही कैटेगरी मिल रही है, कुछ जगह पे दो कैटेगरी मिल रही है, कुछ जगह पे तीनों कैटेगरी मिल रही है. देन हाउ वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट एल्गोरिथम, राइट. सो दैट्स व्हाई एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कम्स इनटू द पिक्चर, और उसके बेस पे डेफिनेटली वी कैन कंपेयर टू एल्गोरिथम, राइट. क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ एक मैथमेटिकल स्टेप्स, एक फॉर्मूला फिक्स करके रखा हुआ है. इन दिस वे ओनली वी विल कंसिडर बिग ओ नोटेशन. ठीक है, इन दिस वे ओनली वी विल कंसिडर थीटा नोटेशन, राइट. तो वहां पे क्या है, ऐसे स्टिपुलेटेड एक कंडीशंस देकर रखिए, एक प्रोसेस देकर रखिए जिसके बेस पे वी कैन एनालाइज सम एल्गोरिथम और हमें एक आउटपुट मिलेगा. ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन योर इनपुट ओनली. वो सिर्फ और सिर्फ आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. अगर आप एक इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा, 10 इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा और 100 इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा, वो सारी चीजें
उस फॉर्मूला के अंदर अवेलेबल है, राइट? सो दैट्स वाई हम उसको एक स्टैंडर्ड की तरह कंसिडर करते हैं जनरली, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही भी होता है, ठीक है? इसीलिए जो मैथमेटिशियन ने जो भी मतलब एक फॉर्मूला बनाया था, वही चीज़ जो एल्गोरिदम एनालाइजर है, डिज़ाइनर है, उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड की तरह कंसिडर करके अभी रखा हुआ है, राइट? सो वी कैन गो विद दैट कैलकुलेशन, और फिर हमें जो भी मिलेगा आंसर दैट विल बी कंसिडर। वहाँ पे फिर वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई कि भाई ये वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है या एवरेज केस है, ठीक है? जिस एल्गोरिदम में ज़रूरत है वहीं पे हम ऐसे बाइपरगेट करके रखेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल नॉट बाइपरगेट कि भाई ये उसका बस बेस्ट है या वर्स्ट है, ठीक है? बट हाँ, एल्गोरिदम को समझने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें ज़रूरी है, राइट? बट जब हमें एनालिसिस का आंसर लिखना है, एट दैट टाइम वी विल नॉट कंसीडर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? हम सिर्फ उसका एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है उसका कैलकुलेशन करके वी विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट, और उसका जो एनालिसिस होगा उसका एक फॉर्मूला हम बनाएंगे, इन दैट विल बी कंसीडर फॉर दैट एल्गोरिदम ओनली, ठीक है? Yes, sir. Okay, so why do we need to compare algorithm? We need to define a number of objective measure. First one is compare execution time. It is not good. क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी बताया, it is specific to particular computer. मैं same algorithm आपके कंप्यूटर पे और मेरे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करूँ, आपके ही दो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर कंपेयर करो, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन टाइम विल बी डिफर। एक जगह पे P4 है, एक जगह पे Core 2 Duo है, और एक जगह पे अभी i7 है। तो हाउ यू कैन कंपेयर दिस थ्री डिफरेंट सिस्टम, ठीक है? और आपका एल्गोरिदम का एनालिसिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, नेवर, ठीक है? वो सिस्टम के ऊपर भले ही डिपेंडेंट है, लेकिन एल्गोरिदम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर सिस्टम। आपका जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है? बट एल्गोरिदम का एनालिसिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, राइट? तो हमें कभी भी एग्जीक्यूशन टाइम को कंपेयर नहीं करना है। सेकेंड थिंग, काउंट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 10 लाइन का कोड है और 15 लाइन का कोड है। नो, इट इज द वर्स्ट मतलब टाइप ऑफ कंपैरिजन, कि ऐसा तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई यहाँ पे 10 लाइन का प्रोग्राम है, अगर मैं 2-3 लाइन को कम कर दूं तो इट विल बी बेटर एल्गोरिदम, नेवर, ठीक है? इट इज नॉट गुड। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वेरी विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज द स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम, ठीक है? कुछ लोगों की स्टाइल होती है कि हर लाइन अलग अलग लाइन में अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन डेफिनेटली विल बी इंक्रीज, बट उससे कुछ एग्जीक्यूशन स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? आप इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी ऐसे अलग अलग लाइन में लिखो, या इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी लिखो, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है? बट हाँ, एज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, वी शुड नॉट राइट लाइक दिस, ठीक है? वो प्रोग्रामिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम या एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, राइट? सो वी कुड नॉट कंसीडर नंबर ऑफ स्टेटमेंट as a comparison parameter. So our ideal solution is express running time as a function of input size, जो मैंने अभी बताया, ठीक है? अभी जो पार्थ ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई वी शुड कंसीडर कि, और हमारे जो एनालिसिस का आंसर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? इट शुड रिप्रेजेंट ऑल साइज ऑफ इनपुट, कि भाई आप एक इनपुट दो या 100 दो या 1000 दो, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई 1 से 10 की रेंज में ये एनालिसिस है, 10 to 20 की रेंज में ये एनालिसिस है, 20 to 50 में ये एनालिसिस है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? यू शुड समराइज योर ओवरऑल एनालिसिस विथ सम पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है? वो एक या दो हो सकती है कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए ऐसी कुछ आप रेंज बना सकते हो, और वो भी एक दो, ऐसा नहीं कि भाई 10-10 की रेंज बनाए और हर एक के लिए आपका आंसर अलग हो, नो, ठीक है? सो यू शुड एक्सप्रेस रनिंग टाइम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, जैसे क्योंकि ये फॉर्मूला ऑब्वियस है कि इनपुट साइज जैसे ही बढ़ेगी योर रनिंग टाइम विल बी इंक्रीज, दैट इज गारंटेड, ठीक है? कितना बढ़ेगा वो अलग क्वेश्चन है, बट बढ़ेगा, दैट इज फिक्स्ड।
So definitely we can express our running time as a function of input size, right? Compare different functions corresponding to running time. अब ये जो दो अलग अलग फंक्शन है उसका जो रनिंग टाइम है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे बबल शॉट का रनिंग टाइम हमने कंसीडर किया बेस्ड ऑन इनपुट साइज, क्विक शॉट का हमने रनिंग टाइम कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन इनपुट साइज. नाउ वी कैन कंपेयर दिस टू डिफरेंट एल्गोरिदम, क्योंकि दोनों ही जो एल्गोरिदम है उसमें मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज और एवरेज साइज सबको कंसीडर कर लिया गया है. ठीक है कि आप एक दो वेरिएबल लोगे तो भी उसके अंदर रिप्रेजेंट होता है, 100 200 लोगे तो भी वहां पे रिप्रेजेंट होता है, और 20-30 लोगे तो भी रिप्रेजेंट होता है, राइट? सो नाउ वी कैन कंपेयर दिस टू डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, आपको ऐसे दो अलग अलग ग्राफ देकर रखे हो तो डेफिनेटली यू कैन कंपेयर दोस टू ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के अंदर तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है, तो सच एन एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन टाइम, प्रोग्रामिंग स्टाइल एक्सेट्रा. वी विल नेवर गो विद द मशीन टाइप कि भाई पेंटियम होगा तो ये आउटपुट मिलेगा और ड्यूअल कोर होगा तो ये आउटपुट मिलेगा और i7 होगा तो ये आउटपुट मिलेगा. ठीक है, नेवर गो फॉर दिस थिंग. वो तो मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट है कि वो कौन सा वो सुपर कंप्यूटर पे यूज करे. ठीक है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, आप अपना एल्गोरिदम वर्स्ट बनाओगे और फिर आप मतलब वहां पे लिख दोगे कि इट विल रन ओनली ऑन सुपर कंप्यूटर. अब सुपर कंप्यूटर पे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा ही होने वाली है. ठीक है, so we will not derive any kind of analysis based on programming style and machine time. ठीक है, now एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हाउ वी शुड एनालाइज अवर एल्गोरिथम. ठीक है, सी जो अभी हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो करेंसी सिस्टम है, उसमें क्या किया गया है. सी पहले के जो जमाने थे उसमें बार्टर सिस्टम थी कि भाई आप एक बोरी गेहूं देते थे तो सामने आपको कुछ चावल मिलते थे, ऐसा कुछ. ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम सब लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे. ठीक है, अभी क्या किया गया है कि करेंसी सिस्टम है. ठीक है, कि भाई गेहूं का ये रेट, चावल का ये रेट. ठीक है, सो ऐसा क्यों किया गया है? हर एक प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट फिक्स करके रखी हुई है. ठीक है, टू स्टैंडर्डाइज एवरी प्रोडक्ट. ठीक है, हर एक प्रोडक्ट को हमें एक स्टैंडर्डाइज करना है कि कोई एक स्केल पर हमें उसको मेजर करना है कि भाई चावल की कंपैरिजन में गेहूं या गेहूं की कंपैरिजन में चावल विच इज कॉस्टलियर, ये हमें कंपैरिजन करना है. तो उसके लिए हमें कोई एक स्टैंडर्डाइज चीज चाहिए, तो वो क्या है? करेंसी है. तो सिमिलरली यहां पे एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए कॉस्ट को कंसिडर किया गया है. ठीक है, यहां पे कॉस्ट क्या होगी कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे दैट विल बी योर कॉस्ट. जो भी आप मेमोरी यूज करोगे, प्रोसेसर यूज करोगे, एग्जीक्यूशन टाइम यूज करोगे. ठीक है, जो भी आप अपना एफर्ट लगाओगे टू डिजाइन अ एल्गोरिथम, टू डेवलप अ प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ये सब चीजों में आप जो भी लगाओगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट. ठीक है, तो यहां पे हर एक स्टेटमेंट के साथ एक कॉस्ट फिक्स करके रखी गई है. एंड we need to find out the total cost by finding the total number of times each statement is executed. और ये जो total cost है that might be compared. ठीक है, मैं it will be compared नहीं बोल रहा हूं, might be compared. ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा स्टैंडर्डाइज पैरामीटर कंसीडर हो सकता है. ठीक है, कि यहां पे हम हर स्टेटमेंट की एक कॉस्ट को फिक्स कर देंगे और फिर टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? और ये जो भी टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी इट कैन बी कंसिडर्ड लाइक कि भाई इसका एग्जीक्यूशन टाइम कुछ इतना हो सकता है, नियर अबाउट. ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जांपल. ये है योर फर्स्ट एल्गोरिथम और ये है आपका सेकंड एल्गोरिथम, राइट? नाउ इन एल्गोरिथम 1 मान लो कि आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखे. सी आपको ये बोला गया है कि 10 का आपने एरे लिया हुआ है. ठीक है, और आपको वो पूरा एरे इनिशियलाइज करना है. ठीक है, ए आर आर ऑफ 10 ये आपका एरे है और इसको मुझे इनिशियलाइज करना है विथ 0.
सो यू हैव टू ऑप्शन. एक ऑप्शन आपका यहां पर है कि एरे ऑफ 0 1 2 3 4 इंडिविजुअल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो और इज इक्वल टू 0 मेंशन कर रहे हो आप. ठीक है. सी प्रोग्रामिंग स्टाइल को अभी साइड पे रखो, ये ऑप्शन है नो डाउट. आप में से शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेगा. ठीक है, बट डेफिनेटली ये ऑप्शन है हमारे पास, राइट. दूसरा ऑप्शन ये वाला है, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन n i प्लस प्लस ARR i इज इक्वल टू 0. आप में से मोस्ट ऑफ या शायद सब लोग ये वाला ऑप्शन ही ऑप्ट करेंगे. अब अगर मान लो कि प्रीवियस जो हम देख रहे थे कि भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हमें देखना है, तो क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो गए 10 और यहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो गए सिर्फ 2. सो कैन वी से दैट कि भाई एल्गोरिदम 2 से एल्गोरिदम 1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 5 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि एल्गोरिदम 2 में सिर्फ 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं और एल्गोरिदम 1 में हमें 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं. हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं? और अगर हम बोले भी तो इज इट ट्रू, कैसा होगा कि यहाँ पे सिर्फ मतलब 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा और वहां पे 10 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा? इज इट पॉसिबल? हाँ. नो सर. नो सर. क्यों? क्यों नहीं पॉसिबल है? वहां पे तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है और यहाँ पे 10 लाइन लिखी हुई है, तो ऐसा क्यों नहीं है? बट सर हमने एल्गोरिदम 1 में 10 लाइन लिखी, राइट. सो फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल दैट एक लाइन को एग्जीक्यूट करने में 1 यूनिट का टाइम लगता है. हाँ. तो 10 यूनिट का टाइम लगा इसको, राइट. हाँ. अभी ये जो 2 लाइन का है, ठीक है, अभी दिखने में ये 2 लाइन लगती है, लेकिन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो ARR I जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होने ही वाला है. ओके. ऐसे 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 आप मतलब ऐसे हम लोग ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि एल्गोरिदम 1 जो है वो ज्यादा टाइम लेगा एल्गोरिदम 2 से. हमको मैथमेटिकली देखना पड़ेगा. ओके, ठीक है. और ये जो फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन एन i प्लस प्लस, इसका भी कुछ तो एग्जीक्यूशन टाइम होगा. कितना है आई डोंट नो, क्योंकि हाँ, इट इज मतलब टोटली डिपेंड ऑन मशीन, बट कुछ तो एग्जीक्यूशन टाइम होगा. ठीक है, हाँ, क्योंकि क्योंकि हाँ, उसमें से दो आई लेस देन एन वाली कंडीशन और आई प्लस प्लस वाली भी एग्जीक्यूट होगी इसके साथ 10 बार. एग्जैक्टली एग्जैक्टली और ठीक ये है. आई प्लस प्लस 11 बार होगा. एग्जैक्टली. तो दैट इज द i इज इक्वल टू 0 एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, i लेस देन 10 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और i प्लस प्लस भी 11 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और इवन i लेस देन n भी 11 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो फॉल्स हाँ आउटपुट हाँ, देगा तब वो वही बाहर वही. जाएगा, राइट. तो वहां पे भी वो 11 टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट. सो उसका भी कोई ना कोई एग्जीक्यूशन टाइम होगा. सी एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम. सो वी कैन नॉट से कि भाई उसको 5 सेकंड लगेंगे या 2 सेकंड लगेंगे, ऐसा हम सेकंड्स में टाइम नहीं बोल सकते कभी भी. ठीक है, तो इस तरीके से यू विल नॉट गिव द आंसर. ठीक है, आपको उसको कुछ कुछ टाइम लगेगा. अब वो जो भी टाइम है, ठीक है, वी कैन असाइन सम वेरिएबल टू दैट टाइम, राइट. इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो भी टाइम है वी विल कंसिडर इट एज अ C1. उसकी जो कॉस्ट है, जो भी एग्जीक्यूशन टाइम, रिसोर्स, सब कुछ मिला के यहाँ पे टर्म यूज किया गया है कॉस्ट. ठीक है, तो यहां पे C1 कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट इन एल्गोरिदम 1. अब ऐसे टोटल 10 स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे मैंने एरे साइज 10 लेकर रखी है एज अ एग्जांपल, ताकि जनरलाइज वे में आप उसको n कंसिडर कर लो. ठीक है, तो टोटल यू विल रिक्वायर्ड C1 मल्टीप्लाई बाय n टाइम. हमारा जो एग्जांपल है उसमें n इज इक्वल टू 10 है, राइट. सो यू विल रिक्वायर C1 मल्टीप्लाई बाय 10. इतना आपको टाइम या जो भी रिसोर्सेस है वो लगेंगे. सो दैट विल बी योर कॉस्ट टू एग्जीक्यूट एल्गोरिदम 1. अब एल्गोरिदम 2 की बात करें तो वहां पे ये जो स्टेटमेंट है इट इज सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट, राइट. जस्ट ये जो स्टेटमेंट है विच इज सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट, राइट.
तो यहाँ पे भी वी कैन कंसीडर C1 कॉस्ट, बट ये जो है दैट इज नॉट नॉर्मल स्टेटमेंट, वो लूपिंग है। तो लूपिंग में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप, पूरी लूप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वो लाइन की बात कर रहा हूं, वो जो स्टेटमेंट है उसकी कॉस्ट कुछ अलग होगी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि C1 से ज्यादा होगी, लेस देन होगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड कि उससे ज्यादा ही होगी 110%, बट स्टिल वी कैन नॉट श्योरली से एनीथिंग बिटवीन द रिलेशन ऑफ C1 एंड C2, राइट। भले ही आपको लाइक लॉजिकली ऐसा लगे कि C1 से C2 की वैल्यू ज्यादा ही होगी, और मान लो कि 100 में से 99 टाइम्स ज्यादा मिलेगी, बट देयर माइट बी वन केस कि जहां पे C1 की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, माइट बी, ठीक है। चांसेस बहुत कम है, इवन 1 मैं बोल रहा हूँ 1 भी नहीं है, 0.1% चांस शायद हो सकते हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। तो हमें और हमें एक्चुअली कंपेरिजन चाहिए भी नहीं, तो वाई वी नीड टू कंपेयर C1 एंड C2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी फॉर स्टेटमेंट है उसकी कॉस्ट को C2 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ योर टोटल कॉस्ट टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम 2 विल बी n इंटू C1, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो तो n टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है ना, और ये जो स्टेटमेंट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड n+1 टाइम, राइट। जो भी आपका एरे की साइज होगी उसके हिसाब से C1 एंड C2 का एग्जीक्यूशन टाइम विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो यहां पे हमें एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा n1 मल्टीप्लाई बाय C2, और सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हमें मिलेगा n इंटू C1। सो योर टोटल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी C2 प्लस C1 इंटू n प्लस C2, राइट। सो दैट विल बी योर टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। और यहां पे आपको एग्जीक्यूशन टाइम कितना मिल रहा था? C1 इंटू n। सो कैन यू कंपेयर दिस टू थिंग, और लॉजिकली किसका आंसर ज्यादा मिलेगा, एल्गोरिथम 1 का या 2 का? लॉजिकली अगर देखने जाए तो एल्गोरिदम 2 का ज्यादा आएगा, राइट। और वैसे भी C1 इंटू n जो है वो यहाँ पे एक पार्ट है, राइट, और यू आर एडिंग समथिंग टू दैट थिंग। सर ऐसा भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना कि मान लो कि जो C1 है वो 0 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, लेकिन फिर भी ये लूप है तो ये कुछ ना कुछ यूनिट ऑफ टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा, तो इस हिसाब से एल्गोरिदम 2 आने ही वाला है आगे। जीरो तो कभी नहीं आएगा, आई एम अज्यूमिंग रेफरेंस के लिए। ऐसा नहीं, क्योंकि C1 हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट को। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ आप लोग ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, ये एक मेरे लिए बेनिफिट होगा अभी, क्योंकि आपके जो सीनियर्स थे वो माइक्रो प्रोसेसर भी 5th सेम में पढ़ते थे, ठीक है। तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टी स्टेट्स एंड मशीन साइकिल्स, ऑल दिस थिंग, ठीक है। जब वो मैं उनको डा पढ़ाता था तब, ठीक है, क्योंकि उनका करंट उसी सेमेस्टर में आता था वो सब। नाउ यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो आपका जो मशीन साइकिल है वो कुछ तो मशीन साइकिल लगेगी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो नो डाउट इट विल बी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कि वो एक माइक्रो सेकंड्स में भी शायद कैलकुलेट हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर विल बी सम वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, कि जो C1 और C2 को होगी, वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही होगी। अब कितनी ज्यादा होगी, डेफिनेटली वी कैन नॉट कंपेयर C1 एंड C2, बट दोनों की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर होगी, वो फिक्स्ड है, ठीक है। इन ऑल द केसेस कोई भी एल्गोरिथम आप ले लो तो उसका जो हमें कॉस्ट मिलेगी वो 0 से डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको कभी भी 0 तो एज्यूम मत ही करना, हाँ मे बी वो माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में भी हो सकती है, बट डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0, वो कंफर्म है, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर मिलेगा, चाहे वो नैनो सेकंड में मिले, माइक्रो सेकंड में मिले, वो अलग बात है, एंड यू आर एडिंग समथिंग टू दैट नंबर, ठीक है, और वो भी नॉन नेगेटिव नंबर है, राइट। तो डेफिनेटली एल्गोरिथम 2 की कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम 1 से ज्यादा होगी। और आप में से मैंने बोला वैसे जब ये हमने ये छोटा सा एनालिसिस स्टार्ट किया था, आप में से 99% लोग एल्गोरिथम 2 ही यूज करेंगे, और वो 99% लोग इंक्लूडिंग मी, वो जो बाकी के 1% है उसको लाइक बैड प्रोग्रामर कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसने
ऐसे 10 स्टेटमेंट लेकर रखे हुए हैं, राइट? हम क्या सोचेंगे, उसको लूप नहीं आता है, मतलब उसने गलत लिखा है, राइट? बट एक्चुअली व्हेन यू आर एनालाइजिंग दिस टू डिफरेंट एल्गोरिदम कि जिसका आउटपुट सेम है, तो एल्गोरिदम 2 का एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी इट इज मोर देन एल्गोरिदम 1. स्टिल वी ऑल आर यूजिंग प्रोग्रामिंग स्टाइल ऑफ एल्गोरिदम 2, और वो गलत नहीं है, वो सही ही है, राइट? सो कुछ जगह पे ऐसी भी होता है कि वी नीड टू चूज हायर कॉम्प्लेक्सिटी. क्यों? क्योंकि अपनी जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है, अपना जो प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी है, ये सारी चीजें वहां पे पिक्चर में आती है, ठीक है? प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी वाइज कंसीडर करो तो एल्गोरिदम 1 विल रिक्वायर मच मोर टाइम देन एल्गोरिदम 2. क्योंकि सी आप ऐसे कितने स्टेटमेंट लिखते जाओगे? ये तो सिर्फ मैंने छोटा सा 10 का एरे लिया था, 100 लिया होता तो आप 100 बार ये स्टेटमेंट लिखते, ठीक है? इट इज टू मच रिडंडेंट, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए अगर प्रोग्रामिंग स्टाइल वगैरह की बात करें तो. सो दैट ऑल एफर्ट्स भी हमें एनालिसिस में कंसिडर करना है. तो वी विल नॉट थिंक कि भाई कि यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस वी शुड प्रिफर प्रोग्रामिंग स्टाइल ऑफ एल्गोरिदम 1, ठीक है? क्योंकि ये एनालिसिस के बाद तो वही दिखता है कि एल्गोरिदम 2 की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू एल्गोरिदम 1, देन वी शुड अवॉइड एल्गोरिदम 2, राइट? बट अगर हम ये सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे देन डेफिनेटली वी विल गो विद द एल्गोरिदम 1, सॉरी एल्गोरिदम 2, राइट? सो नाउ इट इज क्लियर कि भाई हर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम या ऐसा कुछ नहीं सोचना है, यू नीड टू थिंक ऑन द डिफरेंट पैरामीटर ऑल्सो, राइट? और हाँ, हर बार ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ प्रोग्रामिंग स्टाइल को कंसिडर करके, जो हमें एग्जीक्यूशन स्पीड तो कंसिडर करनी ही है, राइट? बट उसके साथ ये चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट? सो इन दैट वे, लाइक अगर हम पेन पेपर से एनालिसिस करने बैठेंगे तो कुछ इस तरीके से वी कैन परफॉर्म एनालिसिस, राइट? बट छोटे छोटे एल्गोरिदम के लिए इस तरीके का एनालिसिस चल जाएगा, बट जब वी आर फोकसिंग ऑन लार्ज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम देन वी कैन नॉट डू एनालिसिस इन दिस वे, ठीक है? एट दैट टाइम हमें कोई स्टैंडर्डाइज टेक्निक चाहिए होगी, और उसी के लिए ये सारे जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वगैरह है, मास्टर्स मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, रिकर्सिव मेथड है, ये सारे मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रिकर्सिव मेथड, ये सारे मेथड्स को डेवलप किया गया है, राइट? इन दिस चैप्टर वी विल सी दिस टेक्निक्स वन बाय वन, राइट? यहाँ पे थर्ड एल्गोरिथम, नेस्टेड फॉलो, 2 डायमेंशनल एरे के लिए, ठीक है? यहाँ पे इसकी कॉस्ट C2, सी जहां पे भी लेवल चेंज हो ना वहां पे कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि सी दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर 1 इटरेशन, ऐसे तो फिर मल्टीपल इटरेशन है आगे, राइट? सो यू नीड टू कंसीडर इट एज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? लेकिन यहां पे भी एन इटरेशन है और यहां पे भी एन इटरेशन है, तो ये दोनों की कॉस्ट वी कैन कंसीडर सेम, ठीक है? नो डाउट नेस्टेड है, ठीक है? तो ये C2 जो है वो मल्टीपल टाइम कंसीडर होगा, ये वाला C2, ठीक है? और ये वाला C2 भी मल्टीपल टाइम कंसीडर होगा, बट यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट? और ये जो स्टेटमेंट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, राइट? तो वी कैन कंसीडर इट एज अ कॉस्ट 1, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम C1, ये दोनों को C2 और इसको C3, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं C1, C2, C3, C4, but in this case we have 4 different value, but ideally C2 और C3 की वैल्यू सेम मिलेगी, so why we need to go for the 4 different cost, ठीक है? so इसीलिए we will use C2 in second and third case, right? और टोटल उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कुछ ऐसा होगा, ये जो C3 स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट, C ऑलवेज गो विद द इनर एंड देन गो फॉर टुवर्ड्स आउटर साइड, ठीक है? तो C3 C3 मल्टीप्लाई बाय
n स्क्वायर, क्योंकि ये लूप n टाइम्स घूमेगी और ये टू लूप n टाइम्स घूमेंगे, तो टोटल ये जो स्टेटमेंट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड n इंटू n टाइम्स, मतलब n स्क्वायर टाइम्स, राइट। तो उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा C3 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये जो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं सो यू कैन विजुअलाइज क्लियरली। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वहां पे n इंटू n प्लस वन, क्योंकि ये अपने लिए जब अपनी खुद की लूप होगी तो वो n प्लस वन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, बट अगर हमें इस लूप के साथ कंपैरिजन करोगे तो वो स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सो n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ रिकरेंस, और उसका एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टाइम है C2, राइट। सो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी C2 इंटू n प्लस वन, और ये जो आउटर है वो n प्लस वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होगा C2 इंटू n प्लस वन, और ये स्टेटमेंट तो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि चलो एक बार है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं, किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो C1 भी उसके अंदर ऐड होगा। सो योर टोटल टाइम विल बी C1 प्लस C2 इंटू n प्लस वन प्लस C2 इंटू n प्लस वन प्लस C2 इंटू n स्क्वायर, right? So this will be your total execution time for algorithm 3. सर वो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें C2 इंटू n किया, वो फर्स्ट की वजह से किया ना, वो n टाइम्स होगा इसके लिए। इसकी बात कर रहे हो सर? या मतलब इसकी अभी जो पहले मार्क किया ना उसमें सर, वो उसमें इंटू n प्लस वन, तो उसका अंदर का आ गया, और दूसरा इंटू n उसके अबव का फिर से रिपीट होगा, इसके लिए लिया है। जैसे ये नेस्टेड फॉर लूप है, राइट। तो Yes, sir. ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अपने आप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो इट विल एग्जीक्यूटेड n प्लस वन टाइम, क्योंकि n टाइम्स तो उसका आंसर सही होने वाला है। Yes. और जब वो n प्लस वन पे चला जाएगा तब उसकी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड n प्लस वन टाइम। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट में हम n से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इट इज रिटर्न इनसाइड लूप। तो सेम थिंग, ये जो स्टेटमेंट है वो इस लूप के इनसाइड पार्ट में है, ठीक है। तो ये लूप तो n टाइम्स घूमेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट n प्लस वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, बट जो इनर पार्ट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, क्योंकि जो लास्ट में कंडीशन फॉल्स मिलती है एट दैट टाइम इनर पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे n जो लिखते हैं वो आउटर लूप की वजह से लिखते हैं, और n प्लस वन जो है वो मतलब वो पर्टिकुलर लूप का स्टेटमेंट है, इसलिए उसके लिए हम n प्लस वन यूज करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट C2 इंटू n प्लस वन, राइट। Yes, sir. So in this way, we can say about the execution time of your third algorithm, right? So using like normal way, pen paper तरीके से we can analyze in this way, but generally it is not recommended by most of the programmer, ठीक है। तो हम ये जो नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक से धीरे धीरे स्टैंडर्ड टेक्निक की तरफ बढ़ते जाएंगे, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इट इज परफेक्टली ओके, ठीक है। ये जो भी हमने एनालिसिस किया हुआ है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट C1, C2 एंड C3, ये जो वैल्यू है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इट विल बी रिक्वायर्ड कि भाई उसमें आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, कौन से सिस्टम के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, ये सारे पैरामीटर्स फिर वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जब आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, राइट। सो दैट्स वाई जब हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं एट दैट टाइम वी विल नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट कॉस्ट, ठीक है। हम उसको सिर्फ C1, C2, C3 से रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे, क्योंकि इट विल बी चेंज machine by machine and programming language by programming language, right? So from this topic we will see in next lecture, right? सर हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वो पीपीटी अपलोड कर देना। हाँ मैं फर्स्ट की तो डेफिनेटली कर दूंगा, सेकंड की अभी एक दो